Hello students, good morning. How are you? Fine? Yes. Today we are going to start the lecture number 3 of set theory. In this lecture I discuss first of all your exercise 1.1, then I discuss types of set. So first of all, yes, we have already completed the question number first. Now question number 2. 5 मिनट की एक्सरसाइज 5 मिनट में पूरी एक्सरसाइज डिस्कस हो जाएगी. वेरी सिंपल है, जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन है. यस, लेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स belongs to or not belongs to. Belongs to it means this particular element are available in this set. Okay, so check कर लो बस. 5 है, yes, belongs to 8, not belongs to 0, not belongs to 4, yes, 2 belongs to 10, not belongs to. So simple. Next, write the following set in roster form. Set builder form से roster form, this is very simple. But roster form से set builder form थोड़ा सा सोचना पड़ता है. और ये बात भी ध्यान रखना, all set builder form can be converted into roster form, can be write into roster form, but all roster form cannot be write into set builder form. Okay, x is an integer. Okay, integer, डायरेक्ट आंसर यही लिख रहा हूँ. integer -3 to 7, so -3 included, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 excluded. Okay, now natural number less than 6, natural number less than 6, 1 2, natural number started from 1 to 6, less than, not equal to, so up to only 5. C, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. Yes guys, sum of 9 2-digit numbers. C is 2-digit natural number. ओके, एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8. तो स्टार्ट करो. 1 7, सम ऑफ इट डिजिट इज 8. 2 के करस्पॉन्डिंग 6 आएगा. 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0. यस, देखो अपन को 2-digit नेचुरल नंबर चाहिए, तो बन तो रहा है, नेचुरल नंबर है. क्या 08 होगा? 2-digit नहीं हुआ है. ओके, सो ये नहीं होगा. दिस इज योर फाइनल आंसर. सिंपल है. डी, प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60. प्राइम नंबर, प्राइम नंबर डिविजर ऑफ 60. तो प्राइम नंबर वैसे क्या क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13. तो ये तो नहीं होगा, ये तीनों हो जाएंगे. तो डी के क्या एलिमेंट होगी? 2 3 5, ओनली 2 3 5. Okay, next, the set of all letters in the word trigonometry. So trigonometry, letters T, R I G N G O
एन, ओ पहले आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे, एम, ई पहले नहीं आया, टी पहले आ गया, आर बी पहले आ गया, वाई और लिख दो। किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, ओके। देखो ना इसमें टी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और आर भी 2 बार। टोटल एलिमेंट कितने, टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कौन सा, अच्छा ओ भी 2 बार आ रहा है ना, तो एक बार ही लिखेंगे उसको। तो 3 कम कर लो, उससे हो गया ना 9, ठीक है। यस 6, सिंपल है, बेटर, बी ई टी आर, ई को एक टाइम ही लिखा, टी को एक टाइम ही लिखना है। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यस, सेट बिल्डर फॉर्म, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। सेट बिल्डर फॉर्म, फर्स्ट suppose let A, this set is let A 3 6 9 12। yes, rule को identify करें, identify the rule in this element 3 6 9 12, multiple of 3, बस x such that, ये तो फिक्स था, x equal to 3n, n belongs to natural number less than equal to 4। अब अपन ने ये नहीं बोला है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जनरली n कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होगा, बट 4 तक जाना है। अब देखो रिवर्स चेक कर लिया करो, रिवर्स चेक कर लिया करो, n इक्वल टू 1 3, n इक्वल टू 2 6 3 9 4 12 आ जाएगा, दिस इज करेक्ट। नाउ सेकेंड, let given set is equal to b 2 4 6, okay, 16 and 32। yes, identified the rule, these are the power of 2। yes, so x such that x is equal to 2 power n, where n belongs to natural number and less than equal to 5, correct। yes, check कर लो, 2 power 1 2, 2 power 2 gives 4, 2 power 3 gives 6, sorry यहाँ 8 होगा, चेक करो चेक करो, yes मैंने मिस्टेक किया है, 8 है, 2 power 3 8, करेक्ट है, yes। इस तरह से चेक करना है, सब देख लो। Now solution of third part, let set C is equal to 5 25 125 625, this also equal to power of 5, x equal to 5 power n, where n belongs to natural number and n less than equal to 4 only। yes, now solution of fourth part, let d equal to 2 4 6 8 dot dot dot, it means it goes to infinity। yes, तो इसको कैसे लिखोगे आप, d is equal to x such that x is a even natural number, बस प्रॉपर्टी तो लिखनी है, कंप्लीट हो गया, इवन नेचुरल नंबर यही होंगे, दिस इज योर आंसर। फिफ्थ लास्ट, लेट सेट ई इज इक्वल टू 1 4 9 up to 100। yes guys, identify the rule, e is equal to x such that x equal to n square, where n belongs to natural number
एंड n लेस देन इक्वल टू 10। सही है। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर। ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में, x इज फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 36 ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, x इज एन और list all the element। okay, it means this questions given in set welder form, so we can write in roster form odd natural numbers। so इसका आंसर क्या आ गया, a इक्वल टू 1, 3, 5 अप टू इन्फिनिटी। इसका आंसर x इज ए इंटीजर माइनस हाफ से बड़ा इंटीजर क्या होगा, माइनस हाफ से -1 थोड़ी होगा, ये 0 है, ये -1 है, माइनस हाफ यहाँ है, तो इससे बड़ा इंटीजर 0 आएगा और 4.5 4 आएगा। ओके, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर, तो ये आप क्वाड्रेट उसमें पढ़ोगे, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। तो x -2, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, तो ये भी आप जानते नहीं हो, इनइक्वलिटी में पढ़ोगे x माइनस a x माइनस b लेस देन 0, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a टू b। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, और दिस इज इंटरवल, पढ़ेंगे एक दिन, कल परसों पढ़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा -2 टू छोटा एलिमेंट पहले आता है, तो इसके बीच का एलिमेंट कितना हो गया, सॉरी इंटीजर कितने हो गए, तो -2 -1 0 1 2। अभी इसको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हेडेक मत लो, ये बाद में आ जाएगा समझ में। ओके, नेक्स्ट डी को तो यहीं लिख लो, लोयल LOYAL। ओके, मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 days, 31 days, Feb, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, सॉरी अगस्त नहीं आएगा है ना, सितंबर, नवंबर। ओके, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओके, यही होगा, और चेक कर लेना, विच प्रोसीड्स, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश, विच प्रोसीड्स के, तो सक्सीड, प्रोसीड एंड सक्सीड इट मीन्स उसके पहले वाले, सक्सीड इट मीन्स बाद वाले, और प्रोसीड इट मीन्स पहले वाले। तो पहले कैसे, पहले वाले कॉन्सोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, वो सारे लिखने हैं, ये हो जाएंगे BCDFGH J। ओके, आंसर आ गया।
all consonant, write all consonant before K. Yes, next. Left in the roster form which is same as set of the right described. Okay, match the column first and column 2. X is a prime number and divisor of 6. ये हो गया. Odd natural number less than 10. Odd natural number less than 10. Yes, natural number and divisor of 6. A and C. And letter of the word mathematics, this. Okay, very question, simple hai. Now next, types of sets. First of all, null set. What is null set? Empty set. null set or empty set, नाम से समझ में आ रहा है. A set having no element in it, like this. Null set is denoted by phi. Suppose A, x is natural number, and this between 4 to 5. तो क्या आएगा? A में कुछ नहीं है, so A is equal to phi. Null set. Okay, understand guys? तो ऐसे आपको एग्जाम्पल सोच के लिखना होगा. ओके, और भी बना सकते हो आप एग्जाम्पल. A, suppose A, x is positive real number, in I plus, and x plus 1 is equal to 0. तो इसमें तो क्या आ रहा है? x -1 आ रहा है. सो दिस इज नल सेट. I प्लस याद है ना, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, नेक्स्ट, नल सेट, सिंगलटन सेट. मैथ्स में अधिकतर नाम ही ऐसे रखे गए हैं जिनकी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनके नाम से ही डेफिनेशन समझ में आ जाती है. सिंगलटन, इट मीन्स a set having only one element. Okay, for example, A equal to x is a natural number and x is belonging from 4 to 6. तो A में कितने एलिमेंट आएंगे? केवल एक ही एलिमेंट आएगा. So this is singleton set. Okay, एक पेयर सेट क्या होता है? पेयर सेट, a set having only two elements known as pair set. एग्जाम्पल, सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल दो या फिर रोस्टर फॉर्म का दो. A equal to 2, 3. दिस इज ए पेयर सेट. दो एलिमेंट रख रहा है. एग्जाम्पल 2, x is a solution of equations x square minus 7x plus 12. इसको सोल्व करोगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो फैक्टर करो. छोटे इक्वेशन का फैक्टर तो बगैर ट्रिक के किया करो. मैंने ट्रिक बता रखी है, को कब यूज़ करनी है? जब बहुत लेंदी हो. सो x माइनस 4 and x minus 3, x is equal to 3 and 4. So element of B is 3, 4. So this is two element, so this is pair set. Okay, C equal to 1, 2, 3, not a pair set, because it contain 3 element.
दो एलिमेंट हो तो पेयर सेट कहते हैं, सिंगल एलिमेंट हो सिंगलटन सेट कहते हैं, कोई एलिमेंट नहीं हो नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट। नाउ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो फाइनाइट, a set having finite element, फाइनाइट एलिमेंट जिनको आप गिन सकते हो, जो आपको पहचान, जो आपको दिखाई दे सकते हैं, ओके, काउंटेबल नंबर्स या फिर फाइनाइट एलिमेंट। एग्जाम्पल, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, so a equal to 2 3 5 7, सो फाइनाइट एलिमेंट है। देखो ओके, ये पहचानो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिख दिया मैंने 20। दिस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट। ओके, बट ऐसे लिख देता मैं, C is equal to 1 2 3 dot dot dot, so C is infinite set। infinite set नाम से समझ में आ रहा है, a set having infinite number of element known as infinite set। तो ये डॉट डॉट चलता जा रहा है, बट यहाँ डॉट डॉट कंप्लीट हुआ है 20 पे, तो दिस इज फाइनाइट। ओके, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ सेट इट मीन्स एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए कितना है? 4 है। यस, फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लियर है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज एन 1 2 3, ओके, W, these are infinite set। I, infinite set। ओके, इक्वल सेट, व्हाट इज इक्वल सेट? नाम से समझ में आ रहा है, इक्वल सेट, a set, two set A and B are said to be equal if every element of A member of B and every element of B is a member of A। yes, example, let A is equal to 1 comma minus 1 and B is equal to x such that x is the solution of equations x square minus 1 is equal to 0। yes, सिंप्लीफाई करें इसको, सो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो b में भी क्या वैल्यू आई? 1 and minus 1, so A and B are equal set। ओके गाइस, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए बिल्कुल, इक्वल सेट। एक होता है इक्विवेलेंट सेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? नंबर ऑफ, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, वो सेम होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 ABCD 4 4 है, तो दीज आर इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल 2, एक नोट लिख लो इसमें, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट but not necessary of all equivalent set are equal set। दुनिया का हर एक इक्वल सेट, हर एक दो इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो वो एलिमेंट ही सेम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होगा ही होगा। ओके गाइस, सिंपल है। एक एग्जांपल और देख लो, ए इक्वल टू
2 and 3. B equal to x is the solution of x is the root of equations x square minus 1 is equal to 0. तो अभी अपन ने सोल्व किया था, b क्या आया था 1 और -1. So here a and b are equivalent set, but a and b are not a equal set, not a equal set. ओके तो एग्जाम्पल आपको सोचने होते हैं. ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन सबसेट एंड सुपर सेट. ओके, तो आज का होमवर्क है कुछ एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एक क्वेश्चन आप कर सको तो उनको ट्राई करना. सम क्वेश्चंस, दिस इज योर होमवर्क. Okay guys, thanks for watching. Bye bye.